Good evening, viewers. This is Apex News India. I am Deepika Islingdor, welcoming you to the news. Let us first take a look at the headlines. And now the news in detail. Chief Minister Conrad K. Sangma on Friday paid a visit to the Shillong Medical College campus at the Old Pasture Institute in Laumali and interacted with the first MBBS batch of the college. He called their entry into the institution a historic moment for Meghalaya medical education sector and hoped that they would set the standards for future students. He described the Shillong Medical College as a very significant institution for the state, noting that he had hoped it would be inaugurated by the Prime Minister. All of you for taking your time out, and most importantly, I'd like to wish all of you the very best. As I said, this is the first batch, the historic batch, and you will set the standards for this institute. So I really look forward to it. I wish you all the very best for your future, for your career, and for your tenure and duration in this medical college. And of course, I also take this opportunity to wish you all a very Merry Christmas and a Happy New Year. Thank you so much. Yeah, so we can just stop there. Wow. It looks like Munnabai MBBS, no? So we can take a photo here. Yeah, can you like us? You're very young to have this. You have good sunshine. Thank you guys. Good luck. The Enforcement Directorate ED Shillong Subzonal Office has provisionally attached assets worth Rs 17.91 crore in connection with a large-scale investment fraud run through the website www.pearlvine.com, operated from Shillong under the banner of Pearlvine International. The attachment was made on December 10th under the Prevention of Money Laundering Act PMLA 2002. According to the ED, the seized assets include 13 immovable properties and 7 movable properties, among them luxury vehicles allegedly acquired using proceeds of the scam. The investigation was initiated on the basis of an FIR filed by the CID Meghalaya Police following a complaint lodged by the Reserve Bank of India RBI Shillong. A charge sheet has already been filed under various sections of the Indian Penal Code against individuals involved in the scheme. Pearlvine International, which falsely presented itself as a US-based entity, offered high-return investment options and collected a minimum membership fee of Rs 2,250. The group is alleged to have operated a nationwide Ponzi scheme between 2018 and March 2023, conducting seminars across India and Thailand to lure new members. At its peak in 2022, the organization claimed to have 80 lakh members in India and abroad. Chief Minister Conrad K. Sangma today announced that the story of Patogan Nengminja Sangma will be properly scripted for plays and dramas to be used in schools and colleges. This initiative aims to encourage the younger generation to connect with the stories of their forefathers. He expressed delight that a short play on Patogan had already been prepared. Announcing the government's new initiative, he said, "We will encourage schools and colleges to organize plays and dramas on the lives of Meghalaya's freedom fighters. A detailed script on Patogan's life will be prepared and shared with educational institutions so that students can enact his story. This will help create awareness and inspire our youth to stay connected with their roots." 아층이 국뽕아니요 방착겐 아층 국뽕나는게 등탕 해다 forces랑 아층코 divide kada bak kada 해다 만들랑 조통 kada 봐도 봐 근데 아층 방난 아층이 unity 아층이 국뽕아니고 아층 방난 아키다 Apsan bongisa ancing development ko rak pana matgen ancing ya song ko ancing tintang na matgen oni gaman mamang saloba ancing negative line ba negative politics so ancing kam ka jana kanya maya so many bakwa ma monas ka nga pa antio
Anga Garo Hills ni, aro Khasi Hills, JT Hills ni, dentang kunan okcikrang siya nga, wene. Dentang development projects na ko nga, inaugurate ka aha, foundation stone na ko sungaha. JT Hills o may ba inauguration ko dakon, Garo Hills ni comments na ko niya ko. JT Hills na san development mo, Anjing Garo Hills udah dongshang. Khasi Hills o mereka mau inaugurate ka udah. Jentiar amni comments na ko niya ko. Garo Hills o mereka mau inaugurate ka udah. Khasi Hills o Jenti Hills ni comment ko niya ko. Terpengira ya ko angni akan ini Somalia. Ya NPP-led government. Mamang salobat nga Jat, Torom, region, community basit kam ka party ba government kurcha. Plug area na, plug district na, plug community na. Singa alo tentang development rangko rak baik, dalo singa kam rangko kainga. Ani Riya pa ya anchini gisepo campaign ba dengan program nako ngatani gisepo. Public dia pun akan dengar. Yan ang ni message. PS amba sagi sinapangnan agan nongatsun aro leadership ni tentang values ni keban biar kiro macam bini akan kepan mangsa kata ko nga gisigrat na skenga politics so election ni sumayo at sang pangnan saksa sakapan ko opposition ko Chundeke matnangi at sin politics aro campaign karong ka. Diba dyan sa election matchota? Iya sama sagi at sina pangnan skiro match. Mamang saloba politics so basiye, jat basiye, party basiye, torom basiye kapka nabi. MLA jogode, Chief Minister jogode, Minister jogode, gamab Meghalaya State ni plak publican. Nakni mandew ah. Election na nakni against vote ka na ba dunga? Hindi ba? Government formation ni Japano. Election matchoda ni Japano. Plak mandirang na, area na, jatrang na. Plak na main katsay kam ka po. Many years back, headed by our respected minister, local MLA. सरकारी को रिक्तला हाँ, अमोना छोड़ को मना हाँ, अमोना senior government officer, soil ni director, joint director retired अमोना suggestion उतना हाँ, नादे ये corporate को promotion उतना मिया चम Nar mangna mangno nama cimbano. Ayah namkin, bila songkang luktang ni, bigo golpo ha promotion ngani giman, anga berembana, bigo jotong karonga, request ko siam sani true na halo mat baha. Election da sini William Nagaro bang kam kana ngani ram, naba songkang luktang, naba na men kita bigo na member asing bong hancing kam kana. Of soil and water conservation rupees, but it is under the mentoring and spearheading force. $62.5 million is activated in the state to address not only climate change adaptation but also to mitigate climate change. I just want to inform you that under the able leadership of our Chief Minister, recently we have as well as the community leaders. Friends, before we kickstart this
Kashmiri germ Hilal Ahmed entering Arunachal Pradesh and spying for Pakistan and China. Watch how SP West Siang SP Alo is confirming that he entered Arunachal as blanket seller, but his real plan is to spy and develop sleeper base with the help of Bangladeshi Muslims already there. So हमने एक सस्पेक्ट व्यक्ति जिनका नाम है हिलाल अहमद, वो 26 इयर्स के हैं, सन ऑफ लेट मोहम्मद सदीक मीर। मैं फिर से दोहराऊंगा, हिलाल अहमद 26 इयर्स के हैं, सन ऑफ लेट मोहम्मद सदीक मीर। वो विलेज है दर्द सुम पीओ करलपोरा पीएस करलपोरा कुपवारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो उनको हमने हिरासत में कल रात को ही लगभग 11 बजे तक में हमने उसको हिरासत में लेने का प्रक्रिया हमारा खत्म हुआ। यानी कि रात को हम 11 बजे तक उनको हिरासत में हम लिया है। तो इसलिए हमने उनको हिरासत में लिया है कि एज पर जो इन्वेस्टिगेशन है तो उसमें यह आया है कि ये भी जो है हमारे पूरे भारतवर्ष में, खासकर हमारे अरुणाचल प्रदेश में, हमारे आलो में जितने भी सेंसिटिव इंस्टॉलेशन है या जितने भी हमारे मूवमेंट्स है, ट्रुप्स का हो, फोर्स का हो, उसको वो अपने हैंडलर को पहुंचाता है। तो इसलिए हम उनको कल अरेस्ट करके एस डायरेक्टेड बाय हमारा अथॉरिटी हमने उनको ईटानगर पुलिस को रात को ही निकल कर आज सवेरे हमने उनको हैंड ओवर कर दिया। नाउ इन्वेस्टिगेशन, डिटेल इन्वेस्टिगेशन जो है वो ईटानगर पुलिस करेंगे। सिर्फ मैं आलो का बारे ही बताऊंगा। उनको हमने, ये आलो कब आया है, कैसे आया है, उसको मैं शॉर्ट में अभी बताऊंगा। जो सस्पेक्ट है, जो पाकिस्तानी के जो जासूस जो सस्पेक्ट है, इनको ये आलो में 25/11/2025 को ये आए थे। आलो में 25/11/2025 को ये आलो में आया। वहाँ पे ट्रेड फेयर चल रहा है ऑल मार्केट में। तो इसमें ये ब्लैंकेट्स वगैरह का शॉप्स चलाते हैं, वो चलाते आ रहा है। तो इस ट्रेड फेयर में वो पार्टिसिपेट किया है, हमारे आलो में आया है। तो 25/11/2025 वो पापुमपारे डिस्ट्रिक्ट से ही आया है। सो उनके ILP वगैरह भी वो उनका वैलिड है। उधर से आपके जो बाकायदा वो प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज सभी है उनके पास। ILP होना चाहिए, ILP है, आधार कार्ड है, बहुत सभी दस्तावेज जो आम नागरिक को होना चाहिए, जो भारत नागरिक को होना चाहिए या अरुणाचल में एंट्री के लिए जो दस्तावेज होना चाहिए, सभी दस्तावेज उनके पास बरामद किया गया है। सो इसलिए ये एक आपके जो सवाल है, मैं आपने सवाल पूछा है करके मैं ये कंफर्म करता हूँ कि जी हाँ, जो चिंपू पुलिस स्टेशन के जो केस दर्ज हुआ है, इस विषय में हमने भी आलो एज पर देयर इनपुट हमने भी एक हिलाल अहमद करके उनको अरेस्ट किया है और हम सवेरे तक उनको चिंपू पुलिस को हैंड ओवर कर दिया है। तो सर, ये चीज सुन के अभी हम लोग का पब्लिक भी बहुत अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। लास्ट टाइम भी एक मर्डरर हम लोग का आलम में भी घुमा, खुलम खुली ऐसे घुमा। तो अभी आपका तरफ से एज ए SP वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट पब्लिक को क्या अवेयरनेस देना चाहेगा? क्योंकि अभी का समय बाहर से बहुत हम लोग अरुणाचल में आ रहा है, एंट्री हो रहा है। तो आपका तरफ से क्या अवेयरनेस देना चाहेगा सर? हाँ, मैं सबसे पहले आपके आलो न्यूज़ टुडे चैनल के माध्यम से खास करके हमारे आलो जनता, वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट की जनता को मैं ये आश्वासन देना चाहूँगा कि हम वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट पुलिस, वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट प्रशासन, हम सक्षम है। अब जो भी व्यक्ति हमारा क्राइम के लिए इधर आते हैं, आप देख ही रहा होगा, जो भी हम आते हैं, जो भी रहते हैं, उसको हम तुरंत पकड़ लेता है। उसके बाद में कोर्ट ऑफ लॉ में पेशी करता है हम। तो इसीलिए मैं कुछ अभी इस केस में भी जो हिलाल अहमद जो संदिग्ध व्यक्ति है, जो ट्रेड फेयर में पिछले 25 नवंबर 2025 से हमारा आलो में रह रहा है, बट हमने उनको कल तो पकड़ लिया है। उसी तरह इस केस में भी हमने पाया है कि जो भी जने जो है, हमारा अरुणाचल में एंट्री के लिए ILP चाहिए। तो ILP के लिए आपको एक लोकल गार्जियन जरूरी है, जो एकदम बिजनेस पर्पस के लिए आते हैं या कुछ भी के लिए, एक लोकल गार्जियन तो होता है। तो मैं उन लोकल गार्जियन को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, खास करके क्योंकि अभी सेकेंड इंस्टेंस है मेरा कार्यकाल में, अभी सेकेंड इंस्टेंस है। जो बाकी डिस्ट्रिक्ट में वांटेड एक्यूज बोलो या वांटेड क्रिमिनल्स बोलो या बहुत ही देश के अगेंस्ट में जो षड्यंत्र रच रहे हैं या रचने जा रहे थे, जो हमारा दूसरा मर्तबा है हमारे जो आलो में, वेस्ट सियांग, मेरा कार्यकाल में मेरा 9 मंथ्स हुआ है आलो वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में। तो ये दूसरा इंसिडेंट है, दूसरा मर्तबा है। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट, उसमें भी मैं रिक्वेस्ट किया था, फिर से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आप लोग को। मैं ये
मैं आप सभी को दिल से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जितने भी आप जो गार्जियन बनते हैं, आप प्लीज उनको एक बार हमारा आलो पुलिस स्टेशन में आइए, उसका नाम दिए, हमको वेरीफाई करवाइए उनको, वो कहाँ से है, कैसे है, उन जिस जगह से आते हैं उनका केस तो नहीं है, तो प्लीज आप हमको वेरीफाई करवाइए ताकि हमारे ऐसे इंसिडेंट होते ना रहे और हमें भी एक मदद मिले कि हम वॉच बनाए रखें कि हमारे आलो में जितने भी जने हैं, वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में जितने भी जने हैं, वो उसके कैरेक्टर और एंटीसीडेंट वेरिफिकेशन पूरे वेरीफाइड है करके। बट हैविंग सेड दैट, हम उन जो बदमाश मेंटलिटी भुगतने वाला है, उन जो असामाजिक तत्व जो भुगतने वाला को मैं ये बोलना चाहूंगा कि हम सक्षम हैं, आप आलो में चुपने के लिए आओ या आलो में आप कोई क्राइम करने के लिए आओ, आपको होने नहीं देगा। वेस्ट सियांग पुलिस हम सक्षम है, आपको तुरंत डिटेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद में कोर्ट ऑफ लॉ में इस केस में जैसे कि हम लोग ने जो हमारे ईटानगर पुलिस के हिंद को हम करके तुरंत कल रात ही दबोच लिया है, उसके बाद में उनको हैंड ओवर कर दिया, उसी तरह हम आगे भी करेंगे। धन्यवाद। Star footballer Lionel Messi arrives in Kolkata, officially kicking off his GOAT India Tour 2025. Visuals from outside the Netaji Subhash Chandra Bose International Airport. Indian Army conducts high-altitude drills along China border. Despite sub-zero temperatures along the India-China border, the Indian Army continues intense combat preparedness exercise. Air defense warriors of the Brahmastra Corps showcased exceptional operational readiness in the challenging terrain of the Eastern Theatre. Fake OTT subscription racket exposed in Noida, 6 arrested. According to DCP Noida Yamuna Prasad, the gang was offering year-long subscription to people by rerouting OTT data without taking any official subscription. जनपद गौतम बुद्ध नगर में नोएडा जोन में डीसीपी सैविया गोयल और एसीपी स्वतंत्र के नेतृत्व में क्षेत्र में जितने भी कॉल सेंटर या तकनीकी रूप से मैनिपुलेट करके कोई भी ऐसे सेंटर्स जो चल रहे हैं, उनके अभियान के रूप में ये चलाया जा रहा है, उनको गिरफ्तार करने के लिए, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। सीपी मैम ने स्पेशली इनको अपॉइंट किया है इस क्षेत्र में काम करने के लिए, जो साइबर से रिलेटेड अपराध हैं उन पर प्रभावी कार्रवाई करने के लिए। इसी क्रम में लगातार इस क्षेत्र में ये कार्रवाइयां चल रही हैं और फेज 1 में एक कॉल सेंटर के रूप में ऑपरेट होने वाला एक सेंटर पकड़ा गया है, जो लोगों को ओटीटी प्लेटफॉर्म की कॉपी बना करके उपलब्ध कराता था। ये डेटा को रीरूट करके उनको अवेलेबल कराते थे और ये खासकर जो इंडियन रेसिडेंट हैं फॉरेन में, खासकर पाकिस्तान में, अमेरिका में, चाइना में या अन्य कहीं देशों में जो रहते हैं, उनको कांटेक्ट करके उनको ये अवेलेबल कराते थे और उनसे डॉलर में पेमेंट लेते थे। एक नेटफ्लिक्स और डिज्नी हॉटस्टार, अमेजन प्राइम, बूट आदि जो चैनल्स हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, इनके जो कंटेंट हैं उनको प्रोवाइड कराने के लिए बेसिकली ये लोग रीरूटिंग करते थे। और इसके साथ जो मेन कंपनी इनकी थी वेबीज सर्विसेज लिमिटेड करके ये कंपनी चला रहे थे। इनकी मास्टरमाइंड जो तनिष्का है वो पूरे इस रैकेट को ऑपरेट कर रही थी
और इसके अन्य 6 साथी जो हैं वो पकड़े गए हैं। इनके पास से भारी मात्रा में जो कॉल सेंटर में यूज होने वाले लैपटॉप, मोबाइल और 20 अदद मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, कंप्यूटर और कीबोर्ड वगैरह बरामद हुए हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्स भी बरामद हुए हैं। इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। जब इनसे पूछताछ की गई तो ये भी पता चला कि ये व्हाट्सएप और उसके बाद वेब के माध्यम से कांटेक्ट करके लोगों से कांटेक्ट करते थे जो एनआरआई फॉरेन में रहते थे। उनको तात्कालिक रूप से बिना पूरा सब्सक्रिप्शन लिए उनको ये पूरा प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराते थे ओटीटी का, और उसके बाद रिचार्ज के रूप में भी और उसके फैसिलिटी अवेलेबल कराने के रूप में भी $100 से $300 पर व्यक्ति चार्ज करते थे ये। तो इस तरीके से भारी मात्रा में ये उनसे कमाई किया करते थे। इनके अकाउंट भी फ्रीज कराए गए हैं जिनमें लाखों रुपए के लेन देन के सबूत मिले हैं। उन पे भी अकाउंट को भी फ्रीज कराया गया है और उसके रिलेटेड जो अकाउंट्स हैं उन पे भी कार्रवाइयां की जा रही हैं, और ऐसे जितने भी जो साइबर अपराधी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाइयां जारी रहेंगी। सर, ये कब से चल रहा था और कोई भी लोग इनमें शामिल हैं? ये अभी मूल रूप से 6 लोग थे जो अभी गिरफ्तार हुए हैं। इनके अकाउंट और इनके पीछे अन्य लोग कौन थे उनके बारे में अभी गहनता से जानकारी की जा रही है, क्योंकि ये पहले बार ही पकड़े गए हैं और ये पहले टाइप का केस है। जैसे मान लिया किसी ने लिया, उसका नंबर या उसका डिटेल आ जाता तो उससे ये कॉन्टेक्ट करते थे या उनको फ्री में ऑफर करते थे। जैसे किसी बंद हो गया, 1 महीने चलाया, बंद कर दिया, या ये वो ओरिजिनल समझ के ही रिचार्ज करते थे कि हमें 2 साल का मिला। एक सेंटर पकड़ा गया है जो लोगों को ओटीटी प्लेटफॉर्म की कॉपी बना करके उपलब्ध कराता था। ये डेटा को रीरूट करके उनको अवेलेबल कराते थे, और ये खासकर जो इंडियन रेसिडेंट हैं फॉरेन में, खासकर पाकिस्तान में, अमेरिका में, चाइना में या अन्य कहीं देशों में जो रहते हैं उनको कांटेक्ट करके उनको ये अवेलेबल कराते थे और उनसे डॉलर में पेमेंट लेते थे। एक नेटफ्लिक्स और डिज्नी हॉटस्टार, अमेजन प्राइम, बूट आदि जो चैनल्स हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, इनके जो कंटेंट हैं उनको प्रोवाइड कराने के लिए बेसिकली ये लोग रीरूटिंग करते थे। और इसके साथ जो मेन कंपनी इनकी थी वेबीज सर्विसेज लिमिटेड करके ये कंपनी चला रहे थे। इनकी मास्टरमाइंड जो तनिष्का है वो पूरे इस रैकेट को ऑपरेट कर रही थी, और इसके अन्य 6 साथी जो हैं वो पकड़े गए हैं। इनके पास से भारी मात्रा में जो कॉल सेंटर में यूज होने वाले लैपटॉप, मोबाइल और 20 अदद मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, कंप्यूटर और कीबोर्ड वगैरह बरामद हुए हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्स भी बरामद हुए हैं। The Prime Minister of Pakistan got tired of wasting time, so after waiting 40 minutes for President Putin, he burst in during Putin's meeting with President Erdogan. The National Investigation Agency has uncovered that 52,846 fake birth certificates were allegedly issued in Raebareli to illegally grant citizenship to individuals from Pakistan and Bangladesh. The probe revealed misuse of the Civil Registration System (CRS) portal by government officials and intermediaries. Several suspects have fled, and investigations suggest the network may extend across multiple states. यूपी में रायबरेली के सलोन इलाके में फर्जी जन्म प्रमाण पत्रों के जरिए पाकिस्तानी और बांग्लादेशी घुसपैठियों को भारतीय नागरिकता दिलाने का मामला सामने आया है। प्रशासन ने इस खुलासे के बाद विशेष टीम तैनात कर 52,846 संदिग्ध प्रमाण पत्र रद्द करना शुरू कर दिया है। सलोन की झुग्गियों और टेंटों में रह रहे कई लोग रातों रात फरार हो गए। जाँच में सामने आया कि CRS पोर्टल में छेड़छाड़ कर जन्म प्रमाण पत्र तैयार किए गए, जिनका इस्तेमाल पहचान बदलने, वोटर लिस्ट और सरकारी योजनाओं में लाभ लेने के लिए किया गया।
सर्टिफिकेट में ग्राम विकास अधिकारी, जन सेवा केंद्र संचालक और अन्य लोगों की भूमिका सामने आई है। सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार पकड़े गए कई घुसपैठियों के पास मुंबई और जम्मू से भी सलोन के फर्जी सर्टिफिकेट मिले हैं। प्रशासन अब पूरे नेटवर्क को खत्म करने और सभी फर्जी दस्तावेजों की जाँच कर रहा है। Delhi Police Operation Seahawk 2.0, a nationwide crackdown against cybercrime and online financial fraud on 10th and 11th December 2025. 7,000 plus suspects interrogated, legal action taken against 2,882 arrested, bound down and notices issued. 392 new FIRs registered and 228 old FIRs linked to the arrested persons. 4,058 NCRP complaints linked with concrete breakthroughs. 944 crore fraudulent funds were linked with these complaints. A decisive strike to dismantle fraud networks and protect citizens in the digital world. देखते हुए और उस ऑपरेशन को और दूसरा एक वर्जन ये प्लान किया गया और 10 और 11 दिसंबर को 48 घंटे का ये ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें पूरी दिल्ली पुलिस से सभी साइबर थानों के अलावा 5,000 पुलिस कर्मियों को इसमें लगाया गया। 2 दिन की ऑपरेशन के बाद 7,500 लोगों को हमने इसमें राउंड अप किया पूरी ऑल ओवर दिल्ली। 284 लोग इसमें गिरफ्तार हुए, 862 लोग बाउंड डाउन हुए, 1736 लोगों को नोटिस दिया गया। कुल मिलाकर जो लीगल एक्शन 2,882 लोगों के खिलाफ लिया गया। ये एक्शन पिछले एक्शन से 200% है, जबकि पिछली बार 1400 लोगों के खिलाफ एक्शन लिया गया था। साथ ही पुरानी 228 FIR की लिंकेजेस एस्टेब्लिश की गई और 392 नई FIR दर्ज की गई। इसमें 28 कलंदरे भी बनाए गए। इसमें जो NCRP के पोर्टल पर 4,058 कंप्लेंट्स लिंक की गई, जिसका कुल चीटेड अमाउंट देखा गया 944 करोड़। इसमें मोबाइल्स 71, लैपटॉप्स और बहुत सारा ऐसा सामान मिला जो केस प्रॉपर्टी से लिंक था। दिल्ली पुलिस इस अभियान को आगे भी जारी रखेगी और इसकी बाकी जो डिटेल्स मेरे सीनियर श्री संजय जैन, जॉइंट CP सदर्न रेंज बताएंगे। मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है, एक मेजर जो प्रण लिया था सतीश कोलचा, वर्दी CP दिल्ली, कि हमें साइबर क्राइम को जड़ से ख़त्म करना है और ख़ासकर म्यूल अकाउंट और इसका फाइनेंशियल बैकबोन, इस पे हमें मेजर अटैक करना है, क्रिपल करना है, ताकि साइबर क्रिमिनल खासकर जो फाइनेंशियल फ्रॉड करते हैं वो दोबारा ये हिम्मत ना कर सके, जरूरत ना कर सके। इसीलिए साई हॉक ऑप्स स्टार्ट किया गया। पिछले महीने 19 और 20 तारीख को ही किया गया था। उसी एक्सपीरियंस को, उसी स्ट्रेंथ को बिल्ड करते हुए ऑपरेशन साई हॉक 2.0 10 और 11 को कार्यान्वित किया गया और ये पहले के मुकाबले काफ़ी वाइड था, काफ़ी प्रिसाइज था। I4C की मदद से हमने क्लस्टरिंग की, हॉटस्पॉट आइडेंटिफाई किए, इंफॉर्मेशन को प्रॉपर वेरिफिकेशन के बाद ना केवल हमने दिल्ली में बल्कि दिल्ली के अलावा 10 स्टेट्स में भी फॉलो अप रेड की गई हैं। खाली दिल्ली तक ही हमने ये अभियान सीमित नहीं रखा, जो एक मेजर कंट्रास्ट है प्रीवियस ऑपरेशन से। इसके अलावा जो एक और पहल की गई है दिल्ली पुलिस ने कि सभी थानों में इंटीग्रेटेड हेल्प डेस्क खोले गए हैं। कोई भी साइबर रिलेटेड कंप्लेंट्स हो, चाहे फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल, उसका वहाँ पर तुरंत रजिस्ट्रेशन होता है, उसको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। थाने के अलावा 1930 हेल्पलाइन नंबर है, उस पर कोई अगर आप फाइनेंशियल भी और नॉन फाइनेंशियल अपराध भी, साइबर अपराध भी रिपोर्ट कर सकते हैं। संचार साथी ऐप के माध्यम से भी आप कोई भी सस्पिशियस नंबर संचार साथी ऐप के माध्यम से रिपोर्ट कर सकते हैं, वो भी फिर हमारे अकाउंट में आ जाएगा, वो ब्लॉक भी हो जाएगा। अगर हम सब मिलकर साइबर अवेयर होंगे तो हम साइबर स्मार्ट हो जाएंगे। Osman Hari was a Bangladeshi politician. He posted about capturing Indian territory, but unfortunately now there is no territory for him on this planet. He was shot dead by unknown gunmen in the Paltan area of Dhaka yesterday.
Well, dear viewers, that is all we have for you today. Until we meet again, thank you for watching.